बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। Assalamu alaikum dear students. This is for class 8 subject Pakistani studies. It is chapter number 5 Resources of Pakistan. Book from book page number 78 till 82 and it is session number 3. Today we will discuss about agriculture. How agriculture system works in Pakistan. What are the different agricultural products and what are food crops? Today our first topic is sources of agriculture in Pakistan. Agriculture sector has great importance in Pakistan because the economy of the country is based on it. Allah Almighty has blessed Pakistan with fertile lands where almost all main crops grow. All the fertile lands of Pakistan and the crops grown on these lands are called agricultural resources of Pakistan. पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के शोबे की क्या क्या सोर्सेज हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़राअत पे ही एग्रीकल्चर पर ही बेस करती है, इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर को हमारे पाकिस्तान में बहुत अहमियत दी जाती है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सबसे बेहतरीन फसलें उगाने के लिए बेहतरीन लैंड्स दी हैं। तमाम की तमाम पाकिस्तान का इलाका फर्टाइल है और यहाँ पे कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। इन सबको एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। नंबर 1, सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर। Pakistan is an agricultural country and the major part of our national income is earned through agriculture. The upper and lower plains of Indus are the main fertile lands of Pakistan. Our crop system depends on the canal system of Punjab and Sindh. एग्रीकल्चर का सिस्टम हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन है और ये हमारी सबसे बड़ी नेशनल इनकम का जरिया है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अपर और लोअर प्लेन्स ऑफ इंडस जो हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के ज़रखेज़ इलाके हैं, इसीलिए हमारा क्रॉप सिस्टम भी पंजाब और सिंध के कैनाल सिस्टम पर यानी नहरी निज़ाम पर बेस करता है। यानी एक किसी दरिया से जब डिफरेंट इलाकों को जाने के लिए पानी देने के लिए नहरें बनाई जाएं तो उसे कैनाल सिस्टम कहा जाता है। क्रॉप सीजन्स ऑफ पाकिस्तान। देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन इन पाकिस्तान, रबी क्रॉप सीजन एंड खरीफ क्रॉप सीजन। The crops grown in October and November is called Rabi crop. It is harvested in April and May. Wheat, barley, gram and oilseeds are Rabi crops. Kharif crop season. Kharif's crop grown in the month of May and June and harvested in September and October. Kharif crops are rice, maize, cotton, sugarcane, sorghum, ज्वार एंड बाजरा। पाकिस्तान में 2 तरह के क्रॉप के सीजन होते हैं, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप्स, और ये सब दोनों मुख्तलिफ मौसमों में साल के महीनों में उगाई जाती हैं। Kinds of crops. There are 2 main kinds of crops. Food crops. The crops which are generally part of our food are called food crops, such as wheat, rice, maize, pulses, barley, vegetables and fruits. Cash crops. The crops which are sources of earning foreign exchange
are called cash crops, such as cotton, sugarcane, tobacco, and oil seeds. दो तरह की क्रॉप्स की किस्में होती हैं। एक तो वो जो कि हमारे खाने का हिस्सा होती हैं रोजमर्रा, जैसे कि वीट, राइस, कॉर्न, दालें, बार्ले, ये सब फूड क्रॉप्स कहते हैं इन्हें। दूसरी होती हैं कैश क्रॉप्स, जो कि हमारे मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाने का जरिया बनती हैं, और वो हैं कॉटन, शुगर केन, टोबैको या ऑयल सीड्स। Number 2, main crops of Pakistan. Wheat. Wheat is the most important food crop of Pakistan. It is a rabi crop and by acre and yield. It is the biggest crop of Pakistan. It is grown in all the 4 provinces, but Punjab is called the home of wheat. Sindh also produces plenty of wheat. Production. It is self-sufficient in the production of wheat, but its production depends on the availability of water. In the years 2004, a large quantity of wheat was imported. पंजाब और सिंध को होम ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। पंजाब को खास तौर पे, सिंध में भी बहुत बड़ी मिकदार में व्हीट उगाई जाती है। ये हमारे पाकिस्तान की फूड क्रॉप है और रबी क्रॉप है। पाकिस्तान अपनी खुद की पैदावार गंदम की खुद ही करता है, लेकिन पानी की दस्तयाबी पर इसकी प्रोडक्शन का दारोमदार होता है। पानी कम होगा तो इसकी बड़ी मिकदार को इंपोर्ट किया जाएगा। Rice. It is the second most important food crop of Pakistan. It is the Kharif crop. Pakistan is producing the best quality rice in the world. It grows in Punjab and Sindh. Pakistan is not only self-sufficient in the production of rice, it also exports rice largely to other countries and earns considerable foreign exchange. चावल भी हमारे यहाँ की फूड क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है ये। इसके अलावा यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का चावल उगाया जाता है, खासतौर पे पंजाब और सिंध में ये उगता है। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है राइस की पैदावार में, बल्कि ये इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं बड़ी मकदार में, जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज हासिल होता है। कॉटन. इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान. It is Kharif crop and it is also called silver fiber of Pakistan. Sindh is called the home of cotton, but it is sown in Punjab, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan also. In Pakistan, cotton grows is of different qualities. Its well-known quality is called American cotton. Pakistan is self-sufficient in the production of cotton and it is biggest export of Pakistan. And we got foreign exchange by exporting cotton. कॉटन यानी कपास, ये भी कैश क्रॉप है पाकिस्तान की और इसे खरीफ की क्रॉप कहा जाता है। इसके अलावा इसे पाकिस्तान का सिल्वर फाइबर कहा जाता है, यानी इसके फाइबर को सिल्वर का नाम दिया गया है। चांदी की तरह ये चमकता है। इसके अलावा सिंध को होम ऑफ कॉटन कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उगाई जाती है। पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है इसकी प्रोडक्शन में और बड़ा इसका एक्सपोर्टर है और हमें इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। शुगर केन. It is another cash crop of Pakistan. It is grown in all 4 provinces of Pakistan. Mainly it is sown in NWFP. As sugar, it is made with the help of sugar cane, so it is very important crop. Pakistan is self-sufficient in production. Sometimes we export sugar also. शुगर केन यानी गन्ना, ये भी पाकिस्तान की कैश क्रॉप है। इसके अलावा ये तमाम चारों सूबों में उगाया जाता है। मेनली इसे NWFP यानी खैबर पख्तूनख्वा में भी उगाया जाता है।
इससे चीनी हासिल की जाती है और ये शुगर हासिल करने का बड़ा जरिया है। पाकिस्तान इसकी पैदावार में सेल्फ सफिशिएंट है और हम अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा इसी को बेचकर हासिल करते हैं। नेक्स्ट इज मेज कॉर्न. It is a part of food of the people living in rural areas. It is also used as animal food. It is grown in Khyber Pakhtunkhwa and Punjab. Pakistan is self-sufficient in its production, but it is not an export item. Barley, it is not grown in large area. It is grown in limited areas in less fertile land. It is a part of food of very poor people and is also used as animal food. Pulses. In Pakistan, different varieties of pulses are grown. Gram is the most important among pulses. Miawali and Sargoda are the main contrast for the production of pulses. Production. There is great need of pulses in our country, but our production is not matching our needs. To match the needs, we import more than 20% of pulses from other countries by spending foreign exchange. मकई, कॉर्न, ये भी रूरल एरिया के रहने वालों की ग़िज़ा है। इसके अलावा ये एनिमल फूड के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। ये खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में उगाया जाता है। पाकिस्तान इसकी पैदावार में सेल्फ सफिशिएंट है। बार्ले, ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पर नहीं उगाया जाता। ये सिर्फ लिमिटेड एरियाज में उगाया जाता है ताकि जानवरों की ग़िज़ा का हिस्सा मुहैया कर सके। पल्सेस दालें, पाकिस्तान में कई तरह की दालें उगाई जाती हैं। चने की दाल जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। मियावाली और सरगोदा में इसकी मेन फसलें उगती हैं। इसके अलावा कई तरह की दालें भी यहाँ उगाई जाती हैं। पाकिस्तान बहुत अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सी चीज़ें तो बना रहा है, लेकिन ये हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं करते और हमें फॉरेन एक्सचेंज देकर फालतू मिकदार हासिल करनी पड़ती है। ऑयल सीड्स. Oil seeds are grown in the irrigated areas of Pakistan like Punjab and Sindh. The cultivation of oil seed is very important from nutritional point of view. Mustard, सरसों या राई, Toria and sunflower seeds are important oil seeds which provide oil and which is used in oil and ghee mills. Due to shortage of water, oil seeds are not grown in all parts of Pakistan. On the whole, the production of oil seeds has not matched with the national needs. Hence, foreign exchange is being spent on the import of oil seeds. पाकिस्तान में ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं पंजाब और सिंध के इलाकों में। इसके अलावा ऑयल सीड की जो पैदावार है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी पैदावार बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई तरह के बीज पाकिस्तान में उगाए जाते हैं, सूरजमुखी के, मस्टर्ड के या सनफ्लावर के सीड्स जिन्हें सूरजमुखी कहा जाता है। इसके अलावा ये तमाम के तमाम ऑयल और घी मिल्स में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन पानी की कमी की वजह से बहुत से ऑयल सीड्स अब आजकल पाकिस्तान के इलाकों में उगाए नहीं जा रहे। इसकी वजह से ये नेशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे और हमें फॉरेन एक्सचेंज देकर बहुत सा ऑयल को अपने मुल्क में मंगवाना पड़ता। Tobacco. It is an important cash crop of Pakistan. It is mainly produced in Peshawar and Mardan and in Khyber Pakhtunkhwa. It is used for preparing cigarettes. It is also used in cigars. A few cigarette manufacturing factories are working in Pakistan. Tobacco in Pakistan largely cultivated. Tobacco and its products are exported to other countries and foreign exchange is earned. टोबैको यानी तंबाकू भी पाकिस्तान की कैश क्रॉप है। इसे ज़्यादातर पेशावर और मर्दान के इलाकों में खैबर पख्तूनख्वा के जो के हिस्से हैं उनमें उगाया जाता है। इसके अलावा ये सिगरेट्स बनाने के काम आता है और इसको
सिगार बनाने वाली फैक्ट्रीज में भी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। टोबैको बहुत ज़्यादा इलाके पे काश्त किया जाता है। इसके अलावा टोबैको और उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरे मुल्कों से एक्सपोर्ट किया जाता है। Livestock is an important part of our agriculture resources. Livestock includes cattle, buffaloes, sheep, goats, camels, horses, donkeys, mules, and poultry. It is a source of foreign exchange earning for Pakistan. Milk, beef, mutton, poultry meat, wool, hair, fat, blood, hides, and skin are the main livestock products. Fish is also an important export item of Pakistan. लाइवस्टॉक मतलब जितने भी ये मवेशी हैं उन सबको लाइवस्टॉक कहा जाता है और ये भी पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का एक अहम हिस्सा है। लाइवस्टॉक जो कि भेड़, बकरियां, ऊंट, घोड़े, भैंसें, मुख्तलिफ कैटल, डंकीज, पोल्ट्री, ये सब लाइवस्टॉक में आते हैं। ये फॉरेन एक्सचेंज कमाने का भी पाकिस्तान में जरिया बनते हैं क्योंकि मिल्क, बीफ, मटन, पोल्ट्री, मीट, वूल, हेयर ये सब चीज़ें लाइवस्टॉक प्रोडक्ट हैं और ये दूसरे मुल्कों में भी भेजी जा रही हैं और ये हमारे मुल्क में भी इनसे पैसे हासिल किए जा रहे हैं। फिश भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पाकिस्तान basically a agricultural country. All types of crops are grown in our country. Pakistan is self-sufficient in the production of cotton, wheat, rice, tobacco, and fruits. We earn considerable of foreign exchange by exporting cotton, rice, tobacco, and fruits. Self-sufficient in the production of oil, seeds, and pulses, so we import these items by spending foreign exchange. Livestock is an important part of our agricultural resource. Our next topic is interdependence of human and other resources. यानी इंसानी और दूसरे वसाइल का एक दूसरे पर इन्हिसार करना. Human resources mean the manpower of a country. The capability, capacity, and skill of the people combinedly called the human resource. Every citizen of more than 10 years who works for himself or for country is called employed person. Human and other resources have a loose link. Both human and other resources depend on each other. Human resources का मतलब ये है कि उस मुल्क में काम करने वाले लोगों की तादाद. इंसानी वसाइल और दीगर वसाइल की अपनी अपनी जगह आज़ाद और अलहदा कदर और अफादियत है, लेकिन ये सब वसाइल बाहिम वसाइल एक दूसरे पर मुनहसर हैं और इनका एक दूसरे पर दारोमदार है. जिंदगी गुजारने के लिए इंसानों की बेशुमार ज़रूरियात हैं, जिनमें से चंद एक जो है वो ज़रूरी, वो रोटी, कपड़ा और ग़िज़ा ये सब शामिल हैं. इसी तरह से चंद सहूलतें और आसाइशें भी इंसानी ज़रूरियात का हिस्सा हैं, मगर इनका शुमार बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के बाद होता है. हर वो शख्स जो 10 साल का है और वो काम कर रहा है उसे एम्प्लॉयड पर्सन कहा जाता है. ह्यूमन रिसोर्सेज पाकिस्तान दुनिया में सबसे एक ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में शुमार होता है और ये दुनिया में 6 नंबर पे सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है. इसके अलावा मुस्लिम दुनिया में ये दूसरे नंबर पे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है. हमारे मुल्क की आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है. 30% के करीब जो हैं वो एक्टिव हैं, काम करते हैं. 40% के करीब जो हैं वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और 18% जो है वो इंडस्ट्रीज से वाबस्ता हैं और 40% लोग दूसरे सेक्टर से वाबस्ता हैं. और ये आबादी जो पाकिस्तान की है इस वक्त
इसको कहा जाता है कि ये ग्रेट रिसोर्स की है, इसको बहुत अहमियत दी जाती है। रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री हैज वेरी क्लोज लिंक। इंसानी वसाइल और किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार बहुत करीबी है। इसकी एक अहम वजह यह है कि इंसान ने जो मेन फीचर्स हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज में और जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं वो उसके मेन फीचर्स ये हैं मंदरजा से। एजुकेटेड पीपल or skillful people. Educated people are an asset of any state because they play great role for the development of the country. Skillful एक तो पढ़े लिखे लोग और दूसरे हुनर वाले लोग। Skillful person people of any country play leading role for the industrial development of that country. So more and more skillful people should be prepared for industrial development. Interdependence of human and other resources. Human resources play a leading role in the national development, but other resources have their separate and independent value as well as utility. इंसानी और दूसरे ज़राए वसाइल का एक दूसरे पर इन्हिसार किस तरह से कारआमद होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का किसी भी मुल्क की कौमी तरक्की में बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन दूसरे रिसोर्सेज भी अपना अलहदा और आज़ाद मकाम और हैसियत रखते हैं, उनका भी अलग से इस्तेमाल होता है। These resources are interdependent. ये दोनों रिसोर्सेज एक दूसरे के पर इन्हिसार करते हैं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। Along with food, clothing and shelter, man has many other needs also which can be fulfilled only by other resources. खाने के साथ साथ कपड़े और शेल्टर के अलावा भी ऐसी चीजें हैं जो कि दूसरी रिसोर्सेज से ही पूरी हो सकती हैं। In these resources, agricultural and mineral resources are the most important. Human efforts play an important role to discover and obtain benefit from these resources. Without human knowledge, skill and ability, the fruits of other resources cannot be obtained. Man has given value to mineral oil, gas and gold because they are discovered by man. इंसानी कोशिशें भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं दूसरे रिसोर्सेज से फ़ायदा उठाने के लिए और उनके ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल को देखने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स भी बहुत अहम रोल अदा करती हैं। इंसानों की मालूमात नॉलेज के बगैर कोई भी रिसोर्सेज कामयाब नहीं हो सकती। इंसानों ने मिनरल ऑयल को, गैस को और गोल्ड को अहमियत दी है और जब उनको क्योंकि उन्हें इंसान ने ही डिस्कवर किया है। लाइफ भी इनके बगैर हमें बिल्कुल बेमज़ा दिखती है क्योंकि इंसानी ज़िंदगी और दूसरी रिसोर्सेज एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। Conclusion: The manpower of a country is called its human resource. Pakistan's manpower is associated with different professions and occupations like agriculture, mining, business, communication, government services and other types of work. Human resources and other resources have their interdependent value as well as utility. But these resources are interdependent. Human life without the resources would have been charmless. Both have separate values. Now here is your homework. Question number 1. What are the sources of agriculture in Pakistan? For the answer to this question, write down the whole work from the related slides in your copy. Sources of agriculture का तमाम काम जो इन स्लाइड्स पे बताया गया है उस सब को कॉपी में इस सवाल के जवाब में लिखना है। How are the human and other resources interdependent? Write down the answer related to this topic mentioned in the
above slides. वो तमाम स्लाइड्स का काम जो कि इस हेडिंग के अंदर करवाया गया है, स्लाइड से इस सवाल के जवाब में आपको लिखना है। लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। आपको इन दोनों सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखने हैं। सबसे पहले इंडेक्स फिल करें और फिर उसके बाद काम को नीटली कॉपी में करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।